Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about Windows functions in SQL. Windows functions हमेशा से ही SQL का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है एंड इंटरव्यूज में ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज मैं एक MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू यूज़ SQL क्वेरीज. आपको पता होगा MySQL वर्कबेंच एक रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS, जिसमें हम SQL क्वेरीज यूज़ करते हैं. So I have opened a script of SQL over here, and in my first command I am creating a database with name SQL underscore questions. So let's run this command. So you can see that this command got executed over here. If I refresh my schemas, you can see that this SQL questions database has got created. Now इस database के अंदर अब हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले हमें MySQL वर्कबेंच को ये बताना होगा कि दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटाबेस, बिकॉज यू कैन सी दैट इन दिस स्कीमास बार अ लॉट ऑफ डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो MySQL वर्कबेंच को ये नहीं पता कि आई एम गोइंग टू यूज विच डेटाबेस. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस कमांड विच इज use SQL underscore questions. Let's run this command. So you can see that this command has got executed, which will tell my MySQL workbench that we are going to use this SQL underscore questions. Now we are going to create a table with name employee, and this employee table is having following columns: employee number, employee name, job, hire date, salary, bonus and department number. तो एम्प्लॉय नंबर बताएगा कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, और एम्प्लॉय नेम में हम उसका नेम मेंशन करेंगे, दैट इज वाई दिस इज ऑफ करेक्टेड डेटा टाइप. देन व्हाट जॉब दैट एम्प्लॉय डज विद इन दैट कंपनी, ये भी करेक्टेड डेटा टाइप का है. देन इन नेक्स्ट कॉलम हम बता रहे हैं कि व्हेन दैट एम्प्लॉय गॉट हायर्ड. ओके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट column which is of salary, of course the salary of that employee. Then bonus followed by department number of that employee. So let's run this command. This command will create a table. Let's check whether this table got created or not. I'm going to refresh this schemas. You can see that in this table section of SQL questions database, this table employee got created. Now this employee table is not having any value, so I'm going to insert values inside this table. So for that I'm going to use this command. अब मैंने जो ये insert values है ना, ये already create कर रखी है. I will be putting all this syntax of create table and insert table in description box, तो आप वहाँ से copy paste कर सकते हैं to easily create your tables in your own MySQL workbench. So अब इसके अंदर मैंने employee number दे रखा है 1609, employee का name दे रखा है David, and David is employed as an HR and he got hired on 17th of December 2020, and his salary is around $800, and bonus is null, which means that he did not receive any bonus, and he is working in department number 20. तो इसी तरह बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रिस्पेक्टिवली नंबर हैं, उनका जॉब का डेजिग्नेशन है, देयर हायर डेट्स, देयर सैलरी, बोनस एंड डिपार्टमेंट नंबर्स. एक पॉइंट और नोट करना है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं इधर 3 तरह के हैं: डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 एंड 30. उसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है. So now I'm going to fill my table employee with this command. Let's run this command by using Control Enter. Look, benefit of using Control plus Enter is that you don't have to select this entire syntax. You just need to bring your cursor at any point within this command and directly hit Control Enter. What Control Enter will do is it will search for this semicolon, and जहाँ पर भी उसे semicolon मिलेगा उससे पता लग जाएगा कि that this command is ending over here, तो वहीं तक ही उस command को consider करेगा. So we don't have to again and again repeatedly select this entire command. So just use Control Enter and your statement will get executed. So we can see that this insert statement got executed over here. Now let us check whether my table employee got filled with values or not. For that I'm going to use select star
from EMP, you can see that my table employee got created with these values. Now let's start with Windows function, which is the main point of discussion of this lecture. So coming to the first, that is syntax of Windows function. तो जो syntax होता है ना Windows function का, वो ये होता है जिसमें क्या होता है, एक एग्रीगेशन फंक्शन रहेगा जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, फॉलोड बाय ओवरक्लोज. ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ें आपको मिली, ओवरक्लोज और ये एग्रीगेशन फंक्शन साथ में, तो समझ लेना वो एक विंडोज़ फंक्शन है. नाउ हम विंडोज़ फंक्शन को समझेंगे थ्रू प्रॉब्लम्स. So I have listed different problems over here, and one by one we will go through all these problems and try to understand the concept of Windows functions over here. तो इधर पहला प्रॉब्लम हमारा, डिस्प्ले द ग्लोबल सम ऑफ सैलरीज इन फ्रंट ऑफ ईच रो फॉर डिपार्टमेंट नंबर 20. तो जो ये सैलरी का जो हमारा कॉलम है, हमें इन सारी सैलरीज को सम करना है और जो भी डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसके आगे वो सैलरी रख देनी है. तो जैसे मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेलेक्ट. पहले मैं सारे कॉलम्स ही फैच कर रहा हूँ. सो अभी देखेंगे हम विंडोज़ फंक्शन कैसे लगाते हैं. तो पहले हम ये टेबल का नाम लिख दूँ मैं, फ्रॉम EMP, और पहला हमारा जो फिल्टर है वो है हमें डिपार्टमेंट नंबर 20 पे लगाना है. तो मैं वेयर क्लॉज यूज़ कर लेता हूँ इधर, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स 20, एंड लेट्स रन दिस स्टेटमेंट ओवर हियर. सो अब हम, आप देख सकते हैं बहुत सारी रोज़ हट चुकी हैं. तो अब हमें लिमिटेड रोज़ पे ही अपना वर्क करना है. तो इधर हम क्या करेंगे, विंडोज़ फंक्शन अप्लाई करेंगे. तो इस स्टार के बाद मैं एक कॉमा दूंगा. और जैसे मैंने बताया कि सिंटैक्स क्या होता है विंडोज़ फंक्शन का, एग्रीगेशन फंक्शन फॉलोड बाय एन ओवरक्लोज. और क्योंकि हमें सम निकालना है सैलरीज का, तो मैं क्या करूँगा, सम एग्रीगेशन फंक्शन लिखूंगा और उसमें सैलरी का नेम दे दूंगा जो हमारे कॉलम नेम है. उसके बाद फॉलोड बाय ओवरक्लोज, सिंपल. सो दिस इज माई विंडोज़ फंक्शन. लेट्स रन दिस सेल, आई मीन लेट्स रन दिस कमांड. तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी सैलरीज थी डिपार्टमेंट नंबर 20 में, उन सब का पहले तो सम हुआ टोटल, और जो टोटल निकल के आया वो आया 10,875, और उसे यहाँ रख दिया गया कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रो. तो हर रो के आगे ग्लोबल सम रख दिया गया. अब मैं इस कॉलम को भी रीनेम कर सकता हूँ. तो रीनेम करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एलियास, जो एस से यूज़ करेंगे हम. और मैं यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग में पास कर दूंगा एज ग्लोबल सम. So you can see that my column got renamed. So this is the basic syntax of aggregation function within a SQL query. ठीक है. Now coming to next question. Now next question says we have to display the running sum of salaries in front of each row for department number 20. तो अब हमें पहले तो ग्लोबल सम था, अब हमें क्या निकालना है, रनिंग सम. रनिंग सम का मतलब होता है कि पहले सैलरी जो 800 थी वो यहाँ पर 800 डिस्प्ले कर दो, उसमें फिर आप 2,975 ऐड करना, फिर सेकंड रो में वो ऐड करना, फिर नेक्स्ट जो 3,000 है वो ऐड करना बाकी की टू रोज की सैलरी में. तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा प्लस 3,000 करूंगा तो वो यहाँ पर रनिंग सम आ जाएगा उस रो का. तो देखते हैं इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं हम. तो मैं क्या करता हूँ, पहले सारा कॉपी कर लेता हूँ, पहली स्टेटमेंट इसी को यूज़ कर लेंगे हम. तो अब क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या किया था, सम ऑफ सैलरी किया था, ओवरक्लोज यूज़ किया था टू फाइंड ग्लोबल सम. डिपार्टमेंट हमें 20 रखना है एज पर आर क्वेश्चन. तो अब हम क्या करेंगे, इस ओवरक्लोज के अंदर ही स्टेटमेंट पास करेंगे ऑर्डर बाय सैलरी. और क्योंकि अब हमें ग्लोबल सम की जगह रनिंग सम निकालना है तो हम इसको रीनेम कर देते हैं एज रनिंग सम. लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. यू कैन सी दैट पहले सैलरी 800 थी रो की, तो रनिंग सम में उसका वैल्यू 800 ही डिस्प्ले हुआ है. देन उसमें हमने 1100 ऐड कर दिया तो रनिंग सम हो गया 1900. देन वी हैव एडिड 2,975 टू ऑल दीज टू रोज, तो टोटल हो गया 4,875. नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ 3,000. तो इस 3,000 को हमें इन तीनों में ऐड करना है. अब जब इन तीन वैल्यूज़ का जो सम था 4,875 था, व्हेन आई ऐड दिस इनटू 3,000 इट शुड हैव बीन 7,875. लेकिन हम देख पा रहे हैं इधर जो वैल्यू आ रही है वो है 10,875. तो यहाँ पर हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जब सैलरीज में सेम सैलरीज आ जाती हैं, दैट इज डुप्लीकेट नंबर्स आर प्लेस्ड, तो उसमें क्या होता है,
पहले 3000 प्लस 3000 उनका सम हो जाता है, दैट इज 6000 ऑफ दीज टू रोज। और जो हमारा रनिंग सम ऑलरेडी रोज से आ रहा था विच वॉज 4875, वो पहले उनमें ऐड हो जाता है। तो मतलब ये 3000 ऐड हो गए 6000 हुआ, और फिर वो इस 4875 में ऐड हुआ, और वो टोटल बनकर हो गया 10875। और यही 10875 फिर नेक्स्ट रो में भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं सैलरी में, तो रनिंग सम में वो डुप्लीकेट्स ना आए, बिकॉज रनिंग सम मीन्स कि हर इंडिविजुअल रो का खुद का सम होना चाहिए, एक डुप्लीकेट ना आए। सो बेसिकली वी हैव टू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, लेट्स अगेन यूज दिस सेम स्टेटमेंट ओवर हेयर। अब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय सैलरी के साथ कॉमा लगा के मैं एक प्राइमरी की चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं एम्प्लॉय नंबर चूज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने एम्प्लॉय नंबर प्लेस किया ओवर हेयर, तो यू कैन सी दैट 2970 जो 4875 हमारा सम आ रहा था इधर, उसमें हमने 3000 ऐड किया तो 7875 आया। प्लस अब उसके बाद हमने हमने 3000 ऐड किया, तो अब जाके हमारा सम आ गया 10875। तो बेसिकली हुआ क्या, रनिंग सम आया लिटरली फॉर ईच रो, विच इज नाउ करेक्ट। तो हमने किया क्या, हमने जैसे ही एक प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया विद सैलरी, तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। पहले सैलरी डुप्लीकेट हो रही थी, अब जो सैलरी और एम्प्लॉय नंबर का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया 2975 1366। ऐसी ही सैलरी 3000 का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया विद 1588। उसकी वजह से डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, और जो हमें रनिंग सम मिला वो बिल्कुल यूनिक मिला फॉर ईच रो। ठीक है, तो हमने देखा कि डिपार्टमेंट नंबर 20 की रनिंग सम ऑफ सैलरीज। अब नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट question, which is display the sum of salaries in front of each row for each department। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने फिल्टर लगा रहे थे डिपार्टमेंट नंबर 20 का, ऐसे ही हमें डिस्प्ले करना है सारी सैलरीज का सम इन फ्रंट ऑफ ईच रो फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो हम बेसिकली ऊपर का सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं, इधर हम कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर बाय की जगह अब हम लिख देंगे पार्टीशन बाय। लेट्स से हमें पार्टीशन बाय करना है बाय ईच डिपार्टमेंट। लेट्स रन दिस स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट, मैंने पहले बताया था कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं 10 20 एंड 30। तो अब क्या होगा, इसमें रनिंग सम कैलकुलेट होगा अक्रॉस ईच डिपार्टमेंट। जैसे अब डिपार्टमेंट नंबर है इधर हमारा 10 है, तो हुआ क्या, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 सैलरीज थी 2450 5000 एंड 1300, पहले इनका तीनों का सम कैलकुलेट हुआ, और जो टोटल निकल कर आया वो रनिंग सम में लिख दिया। बेसिकली रनिंग सम इज नॉट करेक्ट नेम फॉर दिस कॉलम, करेक्ट नेम विल बी ग्लोबल सम। लेकिन अब क्योंकि हम इधर हर डिपार्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो करेक्ट नेम विल बी ग्लोबल सम फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ग्लोबल सम आया है हमारा फॉर ईच डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। इसी डिपार्टमेंट नंबर जो है 20 का, पहले ये जो जितने भी सैलरीज हैं फॉर डिपार्टमेंट 20, इन सबको ऐड किया जाएगा, और इनको जो इनका सम निकल के आया 10875 वो यहाँ पर हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस कर दिया गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक ही सम है, मैं चाहता हूँ इधर रनिंग सम आए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस पार्टीशन बाय के साथ एक ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट भी लिख दूंगा, दैट वी हैव आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस बाय सैलरी कॉलम। नाउ लेट्स रन दिस स्टेटमेंट। वी कैन सी दैट अब हमें एक रनिंग सम मिल रहा है, सो आई कैन रीनेम दिस एज रनिंग सम। तो पहले 1300 था इस पार्टीशन में फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10, उसमें 2450 ऐड हुआ तो 3750 हो गया। देन वी एडिड 5000 टू इट, वी गॉट as resultant as 8750। Similarly for department 20 and for department 30। Now again same thing is happening over here कि जो department 20 था मेरा,
उसका आप देख सकते हो कि रनिंग सम में 3000 पहले ऐड हुआ गया 6000 और वो इस 4875 में ऐड हो गया और उसकी वजह से डुप्लीकेट सैलरीज फिर से प्रोड्यूस हो गई 10875। तो हम क्या कर सकते हैं अब इस हमने पहले क्या किया था, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया था ऑर्डर बाय सैलरी कॉमा एम्प्लॉय नंबर करके। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर बाय सैलरी की जगह मैं हायर डेट कर देता हूँ। देयर इज सम एरर, लेट्स चेक। ओके, तो आई हैव नॉट प्लेस सेमीकोलन ओवर हियर। सो अब मैं इस स्टेटमेंट को रन करता हूँ। सो यू कैन सी दैट हमारा पहले एक पार्टीशन क्रिएट हुआ, लेट्स से फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10। अब इस बार सैलरी की ऑर्डरिंग नहीं हुई, इन इंस्टेड हमने हायर डेट के हिसाब से ऑर्डरिंग करी है, क्योंकि ये 23 जनवरी पहले आएगा, देन 9 जून विल कम एंड देन 17 नवंबर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैलरी थी 1300 पहले वो प्लेस की गई, फिर 2450 ऐड किया गया उसके अंदर, विच टर्न्स आउट टू बी 3750, देन 5000 इज एडेड टू इट, which turns out to be 8750. Now coming to department 20. अभी हमारा सारी रोज हैं जो हैं डिपार्टमेंट 20 की हैं। तो पहले क्या हुआ, एक पार्टीशन क्रिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट 20, उसके अंदर फिर ऑर्डरिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू हायर डेट, देन उसकी जो सैलरी का सम था वो हुआ। तो पहले 3000 था, 3000 ही रख दिया गया, देन 800 इज एडेड टू इट विच टर्न्स आउट टू बी 3800, देन 2975 इज एडेड फॉलोड बाय 3000, 1100 एंड देन फाइनल रिजल्ट इज 10,875। तो आप देख सकते हैं हर एक रो का एक यूनिक रनिंग सम मिला है हमें। सो दिस इज हाउ विद इन अ पार्टीशन वी हैव रिमूव्ड द डुप्लीकेट्स। ओके, so this we have already seen. Now moving to the next topic, that is frame. अब फ्रेम क्या होता है, एक तो एक पार्टीशन के अंदर, सपोज करो इस पार्टीशन के अंदर विच इज द पार्टीशन ऑफ डिपार्टमेंट 20, इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 रोज हैं जिसमें हमने सम निकाला है। अब फ्रेम क्या होगा, एक सबसेट ऑफ दिस पार्टीशन। लेट्स से कि इसमें मैं सिर्फ 3 रोज कंसिडर कर लेता हूँ आउट ऑफ 5, तो 3 रोज का मेरा एक फ्रेम बना है ऑफ पार्टीशन विच वाज हैविंग 5 रोज। सिमिलरली हमारे पास फ्रेम में 2 रोज हो सकती हैं, 4 रोज हो सकती हैं। अब इंटरव्यूज में कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपको विद इन अ पार्टीशन 3 रोज पे सम निकालना है, मतलब रनिंग सम निकालना है फॉर 3 रोज, और आपका फ्रेम जैसे 4 रोज का है तो आपको उसका सम निकालना है। ठीक है, तो अब फ्रेम के अंदर 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है करंट रो, एक है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और एक है अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो तीनों को डिस्कस करते हैं पहले। तो जैसे करंट रो का मतलब हो गया जिस पे मेरा अभी इटरेशन हो रहा है, मतलब करंट, ये मेरी जैसे करंट रो है। फिर करंट रो मेरी जैसे पहले उसकी सैलरी रख दी गई 3000 रनिंग सम में, अब जब वो नेक्स्ट रो आई उसकी सैलरी है 800, तो रनिंग सम हो गया 3800, तो ये है करंट रो। तो अब डिपार्टमेंट 20 में ही जो करंट रो से प्रीवियस रो है जिसपे हम ऑलरेडी फंक्शन लगा चुके हैं जो था 3000, वो बन जाएगी प्रीसीडिंग रो फॉर दिस करंट रो। तो प्रीसीडिंग रो फॉर दिस एम्प्लॉय नंबर 1609 इज 1902, और इसी करंट रो 1609 की जो फॉलोइंग रो होगी वो होगी विद एम्प्लॉय नंबर 1366। तो इस करंट रो की ये प्रीसीडिंग रो हो गई, ये हो गई फॉलोइंग रो। और जब एक कीवर्ड आता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, जब मैं बोलूंगा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा फ्रेम होगा ना वो पार्टीशन के बराबर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर पांचों रोज आ जाएंगी ये वाली, मतलब पार्टी नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन पार्टीशन विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन माई फ्रेम। तो 5 रोज अगर पार्टीशन में है तो फ्रेम में भी 5 रोज हो जाएंगी व्हेन आई से अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो इन सारे सिंटेक्सिस को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अभी
टू गेट अ बेटर पिक्चर मैं कुछ ही कॉलम्स उठाऊंगा और वो भी सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए। ठीक है, मैं सारे कॉलम्स फैच नहीं करूंगा। अब मैं फैच करता हूँ, सपोज करो मैं एक एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ, एक एम्प्लॉय नेम यूज कर रहा हूँ, देन आई एम यूजिंग इट्स जॉब कॉलम, और एक हायर डेट यूज कर लेते हैं। सारे ही हो गए तो फिर जॉब हटा लेते हैं, चलो। ठीक है, हायर डेट। ठीक है, एक सैलरी का कॉलम ले लेते हैं हम लोग, बोनस और बोनस हटा देते हैं, और एक डिपार्टमेंट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है मेरे पास। ये पिक कर रहा हूँ मैं, और इधर एक फिल्टर लगा देते हैं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स 20। ठीक है, अब देखते हैं इस पे हम कि जो हमारा विंडो फंक्शन है सम का, उसमें अगर हमें पूरा पार्टीशन ना कंसिडर करके सिर्फ फ्रेम कंसिडर करना है तो क्या सिंटेक्स रहेगा। सपोज करो सम मैं यूज करता हूँ, सम ऑफ सैलरी ओवर क्लोज रहेगा। ये हो गया हमारा जनरल विंडोज फंक्शन का सिंटेक्स। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय यूज करता हूँ पहले सैलरी का, जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अब जो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई फ्रेम के लिए, वो फ्रेम की टर्मिनोलॉजीज हमेशा ऑर्डर बाय सैलरी के बाद आएंगी, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इस सैलरी में सपोज करो मैं लिखता हूँ अनबाउंडेड, वेट अ मिनट, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इसको पहले रन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस हुआ, फिर उससे समझेंगे इसका मतलब क्या था। सो आई हैव रन दिस एंटायर सेल। तो इसमें देखो क्या हुआ, रनिंग सम आया। सबसे पहले क्या किया उसने, 800 पिक कर लिया, उसने यहाँ पिक कर दिया सैलरी को। देन टू दिस 800 1100 गॉट एडिड, विच इज 1900, एंड टू दिस 1900 we have again added 2975, and we have received this 4875, and so on, that is 3000 is added, again 3000 is added, we got this। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पहली रो इटरेट होगी ना, ये होगी मेरी करंट रो। अब इस करंट रो के लिए अनबाउंडेड प्रीसीडिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे पहले तो कोई भी रो नहीं है, तो इसलिए इसको 800 ही प्लेस कर दिया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रो, दैट इज दिस। तो अब ये करंट रो हो गई सपोज करो मेरी, जिसकी सैलरी 1100। अब हमने लिखा है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, मतलब इसके ऊपर जितनी भी रोज है उनका सम। तो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब 800 एक ही रो है जिसके सैलरी है 800, तो वो ऐड हो गया। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट रो, ये है मेरी करंट रो। अब अनबाउंडेड प्रीसीडिंग इस करंट रो के लिए क्या हो गया, इसके ऊपर की सारी रोज और उनकी सैलरी का सम हो गया 4875। सिमिलरली 3000 के ऊपर की सारी रोज और इसके ऊपर की सारी रोज, तो इस करंट रो के लिए सारी रोज का सम प्लस इस करंट रो का सम वो है 10875। अब सपोज करो मैं इस अनबाउंडेड प्रीसीडिंग की जगह मैं लिखता हूं कि मुझे सिर्फ इस करंट रो की दो प्रीवियस रोज का सम चाहिए, दैट इज दीज टू रोज। मुझे इन दो रो का सम नहीं चाहिए और इन दो रो का सम चाहिए इस करंट रो में। तो इसका सिंटेक्स क्या कर दूंगा मैं, लेट्स कॉपी दिस एंटायर थिंग। अब इस अनबाउंडेड प्रीसीडिंग की जगह ना, अनबाउंडेड मतलब सारी रोज, अब अनबाउंडेड को हटा के मैं सिर्फ टू प्लेस कर देता हूँ। लेट्स रन दिस। अब देखते हैं, अब इस 800 रो के लिए 800 ही था, 1100 के लिए फर्स्ट रो जो आई वो 800, तो इसलिए इसको ऐड कर दिया गया 1900। अब इस थर्ड रो में देखते हैं 2975 के लिए, क्योंकि हमने दो प्रीसीडिंग डाली हैं तो दो रोज प्रीसीडिंग यही है, तो इन दोनों का सम हो गया और ऐड हो गया 4875। लेकिन जैसे ही अब मैं इस करंट रो पे आता हूँ, इस करंट रो के लिए दो प्रीसीडिंग रोज हैं, वो है ये 1100 एंड 2975, तो इन दोनों का सम होगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा 3000 में, दैट टर्न्स आउट दैट कम्स टू बी 7075। इसके अंदर ना ये फर्स्ट रो 800 इसका सम इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली जब मैं इस करंट रो पे आऊंगा, इसकी वैल्यू 3000, तो इस 3000 में प्रीसीडिंग दो रोज का सम ऐड होगा और वो हो जाएगा 8975। इसमें इन दो रोज का सम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे पार्टीशन में सिर्फ 3 रोज का मेरा फ्रेम बना जिसका हमने सम कंसिडर किया है।
नाउ सपोज करो जब मेरी एक करंट रो है, मैं चाहता हूँ इस करंट रो पे जब एग्जीक्यूशन होना हो तो इसकी एक प्रीवियस रो और इसकी एक नेक्स्ट रो, उन सब का सम हो जाए। वो देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पहले का ही सिंटेक्स ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉलोइंग रो का मतलब प्रीवियस रो एंड नेक्स्ट रो। तो प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस रो, और मुझे सिर्फ एक रो का सम चाहिए। और अब की बारी मुझे करंट रो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसकी नेक्स्ट रो, मतलब करंट रो की भी नेक्स्ट रो। तो उसके लिए केस में क्या रखूंगा, मैं वन फॉलोइंग रो रख दूंगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इधर, क्योंकि हमने सिंटेक्स में करंट रो तो मेंशन किया ही नहीं है। ओके, वन फॉलोइंग। तो हमने अब जब सिंटेक्स में करंट रो मेंशन किया ही नहीं है तो करंट रो का कैसे सम आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है कि एक प्रीसीडिंग रो कंसीडर कर ली जाती है, फिर मिडल में एक करंट रो ऑटोमेटिकली वो खुद कंसीडर कर लेगा, और फिर उसमें एक वन फॉलोइंग रो ऐड कर दी जाएगी। तो सपोज जो मेरी ये इसको मैं अगर रन करता हूँ तो पहली रो थी 800। अब 800 रो के लिए प्रीसीडिंग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करंट रो का नेक्स्ट वन फॉलोइंग जरूर है, वो है 1100। तो इस 1100 को इस 800 में ऐड कर देंगे, 1900 आ जाएगा। इसलिए नाउ जब मेरी नेक्स्ट रो हुई जो है मेरी 1100 है, तो इस 1100 की एक प्रीसीडिंग रो है, अब उसमें 800 ऐड कर दो, दैट इज 1900। और इसी की कॉरस्पॉन्डिंग एक फॉलोइंग रो भी है, दैट इज 2975। तो इन तीनों रोज का जो सम होगा, वन प्रीसीडिंग वन करंट एंड वन फॉलोइंग, उसको हम यहाँ रख देंगे 4875 पे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट करंट रो बनेगी मेरी ये 2975, उसमें हम वन प्रीसीडिंग रो ये है और एक वन फॉलोइंग रो ये है। तो इन तीनों को ऐड करके 7075 प्लेस कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्रेम पार्टीशन के अंदर हम एक फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं, और उस फ्रेम के हम डिफरेंट सम देख सकते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि इसमें वन प्रीसीडिंग एंड वन फॉलोइंग का मतलब क्या है। अब सपोज करो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से वेयर इट इज मेंशन दैट वी हैव टू फाइंड द रनिंग सम फॉर डिपार्टमेंट 20 बिटवीन ऑल प्रीवियस रोज, करंट रो एंड फॉलोइंग रोज। अर्लियर तो हमने क्या किया था, इधर हमने सबसे पहले देखा था कि अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो देखी थी। अब मुझे सारी फॉलोइंग रोज भी देखनी है। तो एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इधर वन प्रीसीडिंग हटा के ना, अब क्योंकि मुझे सारी रोज चाहिए तो इधर मैं अनबाउंडेड लिख दूंगा। सिमिलरली वन फॉलोइंग हटाना है, मुझे सारी रोज चाहिए, दैट इज करंट रो के बाद की सारी रोज चाहिए, तो मैं उधर अनबाउंडेड लिख दूंगा। नाउ लेट्स रन दिस स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं हमें ग्लोबल सम मिल गया, बिकॉज जैसी मेरी ये करंट रो थी जिसकी सैलरी थी 800, अब इसके लिए अनबाउंडेड प्रीसीडिंग तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले कोई भी रोज नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड फॉलोइंग में सारी रोज आ रही हैं। तो इसलिए ग्लोबल सम हो गया, टोटल सम निकाला वो हो गया 10,875। सिमिलरली अब जब मैं नेक्स्ट करंट रो पे गया जिसकी सैलरी है 1100, उससे पहले की अनबाउंडेड मतलब सारी रोज विच इज 800, एंड उसके नीचे की सारी रोज, तो इन सब का सम हो जाएगा, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू वुड बी 10,875। सिमिलरली फॉर दिस रो, सारी रोज ऊपर की ये हो गई 800 1100 जिनकी ये सैलरी है, एंड देन 3000 प्लस 3000, तो अगेन 10,875 is added to it. So this is how we can create partitions, and within those partitions we can create frames by using these syntaxes of unbounded preceding and unbounded following. Similarly, we can give the numbers like 1 over here and 1 over here and create frames of different rows. So this was the concept of Windows functions in SQL. In my next lecture, I'm going to cover other Windows functions like lead, lag, rank, row number, and dance rank. So stay tuned. I will be soon putting that lecture too and covering all doubts related to Windows function. If you have any doubts, feel free to mention them in comment box below this video. Please subscribe to my channel, like this video, and I'll meet you next video. Bye.